is a really joyous and happy day in the political history of today's Arunachal, because this is the day that everybody are running after from pillar to post to join the ruling party. And amidst of that, you are the one who opted the party who seek for truth, and that deserves a great appreciation. And going through the profile of your file, I have seen most of you are from the legal background. And for the kind information of the House, the relation between legal background means the advocate and the Indian National Congress is as all as human on this earth. Because it were the Congress, it were the freedom, it were the advocates, it were the legal luminaries, it were the jurists who take the shoulders, who take the responsibility to India, free India from the yoke of the Britishers. And the advocate and legal luminaries has played a vital role. And today, your decision to join the Indian National Congress is not only a political choice, not a political option. It is indeed a commitment to the values of the truth, justice, and democracy, and the welfare of the people, and the sanctity of the country and the sovereignty as a whole. And without taking much of the time, just taking advantage of the moment, I once again welcome each and every one of you who have decided to join the Congress party, Congress family at this hour of need. And as we say in Hindi, जब प्यासा होता है तो जो एक गिलास पानी देने वाला को हम याद करते हैं, जो भूखा होता है तो एक ब्रेड देने वाला को याद करता है, जो दोस्ती का जरूरत है आपने डिसाइड किया हम सब के साथ चलने के लिए। आप सबको कांग्रेस की हर एक रैंक एंड फाइल की ओर से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। वैसे आप जिस नेता को भरोसा करके इस पार्टी में ज्वाइन करने का फैसला किया, बोशीराम श्रीराम जी अच्छा आदमी है, डायनेमिक है, विजनरी है, लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर सकता है। आपका मदद का बिना, आपका सहारा का बिना कुछ नहीं कर सकता है। दैट इज वाई लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस वर्क हार्ड। कदम पे कदम मिलकर चलता है, without expecting nothing, but it will yield the result one day. And Congress is there to see you if the time comes, and we will show you the light of the day. As some of the paradoxical leader of this country say that they got freedom in 2014 only, but we got freedom much before that. And we are happy that they are there because of our leader of the yesteryear, who gave the Constitution of India, the best constitution of the world. And yesterday I was following the European Union Parliament, and there I was listening the speech from Dr. APJ Abdul Kalam. The gist of the speech where let us listen one another, let us understand one another better, let us respect one another, and let us cooperate one another together. And while tuning up this line, let me remind you with the quotes of Swami Vivekananda: arise, awake, stop not till the goal is reached. Hopefully, we shall overcome someday. Thank you so much. Thank you once again. Thank you each and every one of you. Thank you. To receive him and as active in the party. Muffler. Bande Miliji is
is the gentleman. He is the gentleman who has contested Eastern Parliamentary Constituency in 2000. May I now request Sri Tahang Mewang, contested MLA candidate from Rumgong, 32 Rumgong Assembly constituency from NCP, to do the honor. May I request Honorable President now request Advocate Dongli Golo from Pakistan to do the honor. I request Honorable President out and उसका साथ कोई है तो सब आ जाइए. वो सब लाइन लगा के Tahan memang ये भी आया है. Tahang Mewang का साथ में आप पहले देना था. जो दुंगली का साथ में जो है तो क्यू में आ जाइए. So Pakistan teams, PCC in charge Pakistan may guide them. हम थोड़ा सा इसमें गलती हो गई, लेकिन ये 15 मेंबर यहाँ पे खाली है. अभी ये होने का भूला है. अभी लिस्ट आया तहंग मेवंग साहब के साथ जो आया है, इन सब को आप लोग भी आ जाइए. तहंग मेवंग और एक बार आके आप गाइड कीजिए. हाँ तो चलो आप तहंग मेवंग एंड टीम सर आप गाइड कीजिए.
May I now request and invite Sri Kolo Talangji, the former State Secretary organizing Aam Aadmi Party, former. He is from 15th Sagali Assembly constituency and he is our new friends and Congress family. Dear Papu, Youth State General Secretary Aam Aadmi Party, he is from Kurongkomet district. And Sri Tar Neep, State Executive Member, District Coordinator, Kurongkomet District, Aam Aadmi Party. They were our new friends, and from today onwards, they are a bona fide member of Indian National Congress. Sir, आपको बैठिए. अभी सबको रिक्वेस्ट है, सबको जो जिस स्पीकर को थोड़ा थोड़ा टाइम देगा, जिसको रिक्वेस्ट है, जिसको कीपिंग द जुडिशियस नेचर ऑफ द टाइम, सबको रिक्वेस्ट है 2 to 5 मिनट में, मिनिमम 2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, उसमें खत्म करने के लिए कोशिश कीजिए. May I request Sri Pandey Mili ji, the consistent MP candidate to श्री हमारे नाबा तांगा बिलियांग जी, और यहाँ सभी को तो मुझे पता नहीं है कौन कौन क्या पोस्ट में है, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, तो धीरे धीरे सबका साथ में संपर्क साझा करेंगे, मिलके काम करेंगे. तो यहाँ तोको मीना जी को भी मैं मोस्ट रेस्पेक्टेड मैडम, और यहाँ सभी उपस्थित को, और यहाँ अभी जो नए आए हुए हैं सभी लोगों को भी मेरा तरफ से बहुत बहुत बधाई, और मेरे अपने को भी बधाई करना. अच्छा, मेरा नाम, बिफोर दिस वन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ बंदे मिली, आई बिलोंग फ्रॉम अनिनी, और मैं आपसू का जॉइंट सेक्रेटरी रहा. मैं बता दूंगा, आपसू का जॉइंट सेक्रेटरी रहा, टीचर किया हूँ मैं, फॉर्मर एक्स टीचर हूँ. फिर उसके बाद में टीचर के बाद में बीजेपी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काम किया हूँ 6 साल, 2005 से लेके 2011 तक. फिर 11 में मुझे फिर मेरा काम को देखते हुए, तो तय तगक जी थे उस समय को, डोमिनिक तादर थे, और ये काफ़ी सारे लोग थे हम लोगों के साथ. तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट दिया माइनॉरिटी मोर्चा का, फिर स्टेट सेक्रेटरी बनाया मुझे, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं स्टेट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ माइनॉरिटी मोर्चा का 11 से लेके 13 तक. तो 17 साल मैंने बीजेपी में मैं काम किया. उसके बाद मुझे बहुत सारा नॉलेज भी मिला, और साथ में पॉलिटिक्स क्या होता है, राजनीति क्या होता है, ग्रास रूट लेवल पार्टी वर्कर क्या होता है, मुझे समझ में आया. उसके बाद 19 में मुझे एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी को मैं छोड़ने का कारण यह रहा कि जब सरकार आया सीनियर को सभी को ख़त्म कर दिया. दिस हैज़ टू बी टेकन इन रिकॉर्ड. भारतीय जनता पार्टी जब आया पहले, ये सरकार में आया 14 में, जो लोग नहीं जानता है विस्तारा शक्ति केंद्र बूथ लेवल कमेटी ऐसे को पोस्ट दिया, ना काम कर सक रहे, ना सही ढंग से संचालन कर पा रहे. तो सीनियर का रखने का बाद खत्म हो गया वहाँ भारतीय जनता पार्टी में. तो दैट इज वाई आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल और फेथ, वो सब को देखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए मैंने बीजेपी को नकार के तो हमारे अबू गेहूँ अपंग जी बोला मुझे पार्टी में आने के लिए. तो आई वॉज जस्ट सिटिंग आइडली आफ्टर रिजाइनिंग आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ दिस वन भारतीय जनता पार्टी. तो अबू ने बोला मुझे आने के लिए.
तो मैं जेडीएस से भी एमपी ला रहा है, अबू ने बोला लड़ने के लिए तो मैं ला रहा। फिर भी उसमें भी हम लोग ने बहुत अच्छा मार्जिन लिया और एक तरफ टक्कर दिया। ईस्टर्न पार्लियामेंट्री में हमें नूक एंड कॉर्नर हर डिस्ट्रिक्ट गांव मोहल्ला जहां तक घूम के देखा हूं। आज का डेट में नेशनल पार्टी को ही डिमांड है, कांग्रेस। और मैं बीजेपी और मैं अभी कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले ये भी देख रहे हैं कि मैं 2024 को मैं एमपी कॉन्टेस्ट किया दोबारा एडीपी पार्टी से, और सुनने में आया अभी एडीपी पार्टी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, सब आके एकजुट होके मिल के नेशनल कांग्रेस को जैसे भी हो हम लोग आगे बढ़ाना है। और पार्टी देखिए, पार्टी कोई ख़राब नहीं होता, हम लोग जानते हैं, लेकिन पार्टी का कुछ कुछ नियम नीति हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसीज को भी हम लोग देखना पड़ता है। तो बीजेपी में ऐसा नहीं है। टू बी फ्रैंक, मैं 17 साल बीजेपी काम किया, मैं देखा हूँ बहुत चेंज हो गया पहले से। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी ऐसा नहीं होना है इन नियर फ्यूचर। सीनियर को भी रेस्पेक्ट देना है, जूनियर को भी रेस्पेक्ट देना है, हर किसी के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है, ताकि सीनियर वाले लोग कभी नहीं सोचते हैं कि जूनियर है। तो अभी कांग्रेस में ज्वाइन किया हम लोग भी। मैं तो कुछ भी नियम नीति जानता नहीं है कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस ने अब तक 72 ईयर्स राज किया है। जितना भी डेवलपमेंट है कांग्रेस का ही है। बीजेपी में जो आया है, बीजेपी में जो अभी बोल रहे हैं कि 10 साल का चेंजेस, उसमें सिर्फ जीएसटी लाया, हाँ, महंगाई बढ़ाया, सबको जीना हराम कर दिया। क्या मिला लास्ट में? ये सब जितना कॉलेज यूनिवर्सिटीज, आपका एयरपोर्ट, रेलवे, सब कांग्रेस का समय का है। ये लोग सिर्फ मेंटेनेंस कर करके पैसा खा रहे और करप्ट पार्टी है। सरकार आ गया, सब स्कीम का पीछे दौड़ रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट का पीछे दौड़ रहे। ऑफिसर से लेके नेता से लेके सब कॉन्ट्रैक्टर बन गए। तो इसको भी देखते हुए चेंजेस हैज टू बी टेकन। एंड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोगों को भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, नाउ यू हैव टू बी वेरी एक्टिव नाउ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाले लोग दो चीज़ काम करना जरूरी है। नंबर 1, मेंबरशिप ड्राइव करना जरूरी है अभी। सेकेंड थिंग, बूथ लेवल कमेटी मेंबर बनाना जरूरी है। बीजेपी आज का डेट में ग्रास रूट लेवल में क्यों स्ट्रांग है? बूथ लेवल कमेटी मेंबर का वजह से। उसको भी हम लोग प्रेसिडेंट साहब से बात करेंगे, कैसा करके ईस्टर्न में हो गया, वेस्टर्न में हो गया, कैसा करके हर पोलिंग स्टेशन में मेंबर बनाना है, उसको देखना पड़ेंगे, उसको अच्छे से बात करके। ऐसा करके हम लोग बीजेपी को स्ट्रांग बनाया था, लेकिन जब बीजेपी सरकार आ गया सब सीनियर को भूल गया और ऐसा लोग आ गया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरी, करप्शन, कमीशन, ऐसा में लगा हुआ सब। ठीक है, आई विल नॉट टेक मच टाइम। तो इसी बात को मैं यहाँ विराम रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पार्टी आ जाइए। अजय गोपे, ये हम लोग साथ में था वो सर, वो बुरा तो BJP voters are now a bona fide members of the Indian National Congress. They will vote for the party. ओके जी। May I now request Anuj Tripathi to share a few words.
जो काम किया है उस पार्टी में हमको आज ज्वाइन होने का मौका मिला, उस पार्टी में हमको काम करने का मौका मिला। तो मैं कांग्रेस सभी कांग्रेस पार्टी आप सबको मैं मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तारती तुरुमुंग कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम तहान मिबांग है। जो लास्ट टाइम एनसीपी से कॉन्टेस्ट हुआ था और मेरा अपना पॉलिटिकल जो है 2008 से मैं पंचायत में ही काम किया है। 2000 माँ पिताजी भी नहीं है, तो इसलिए अपना मेरा एनसीपी पार्टी को मैं अपना पार्टी को छोड़ के कांग्रेस का दौर में आया। आज कांग्रेस का जो विजन है, कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है, मैं उसको अपना दिल से मैं अच्छा लगता है और मैं उसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ना चाहता हूँ। और कांग्रेस को जैसे आइडियोलॉजी को जैसे हम लोग ग्रास रूट तक ले जाने में जैसे आप लोग का कांग्रेस पार्टी का जो आदेश देगा, मैं उसी ऐसे के साथ में काम करूँगा। और तारतीतु में स्पेशली हम तारतीतु के बारे में अपना थोड़ा कुछ या मैसेज यहाँ से द्वारा हम मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। तारतीतु में स्पेशली अभी पब्लिक जो है नेपोटिज्म से तंग आ गया। तो नेपोटिज्म से तंग आके सभी पब्लिक अभी सभी दुखी में है, सब सेंटिमेंट में है। तो उस नेपोटिज्म को भी हम लोग कांग्रेस पार्टी लोग पब्लिक का उसमें हम लोग पब्लिक का थ्रू हम लोग पहुंचा देगा और नेपोटिज्म को हम लोग जितना चाहिएगा हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे कांग्रेस पार्टी। और जितना भी हमारा तारतीतु का जो लीडर है अभी और जुड़ेगा कांग्रेस में, कांग्रेस का आइडियोलॉजी को अभी सब फॉलो करेगा। कांग्रेस का जैसे अभी जो स्पेशली जो अभी बहुत चोरी का जो ये है उसमें हम लोग सब जनता जाग चुका है। तो ये सब का मुद्दा लेके हम सब काम करेगा और पब्लिक का ग्रास रूट को ये सब पहुंचाने का हम लोग कोशिश करेगा। बीजेपी का जो जो कमियां है उसका जो चोरीबाजी का जो काम किया है उस सब काम को हम लोग पब्लिक के आगे रखेंगे। और आने वाला जो यहाँ में आप सबका आदेश देगा, आप सबका ये से हम सब मिल के काम करेगा। और कांग्रेस पार्टी का जो हम लोग जैसे हम लोग आदेश देगा हम लोग उस मुताबिक से हम लोग काम करेगा। और यहाँ आज जितना भी मेरा पार्टी है आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सब ने इतना दूर से आके हमको साथ दिया, ईटानगर तक बस्ती से लेकर गाँव से लेकर आज ब्लॉक से 32 से आके हमको साथ दिया। आप सबको भी मैं सही दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप सब कांग्रेस पार्टी का सीनियर मेंबर लोग को भी मैं हमको कांग्रेस में काम करने का मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सबको सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑनरेबल प्रेसिडेंट बशीरन सीराम सर जी और वर्किंग प्रेसिडेंट ब्यालिंग सर और तारा सर और जितना भी वाइस प्रेसिडेंट है एपीसीसी का, जितना जनरल सेक्रेटरीज है, जितना सेक्रेटरीज है और जो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अरुणाचल से आने वाला कांग्रेस लीडर्स, वर्कर्स और जो फ्रंटल विंग्स का मेंबर्स, लीडर्स, आज मुझे यहाँ एक शब्द बोलने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रेसिडेंट सर और ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन चेरा सर जी। मैं कुछ बोलने का नहीं है,
मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा 32 रुंगोंग में हम दोस्त मिला है, कॉलीग्स मिला है। मिस्टर तहान मुइवांग का रूप में उसको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रॉम दी कोर ऑफ माई हार्ट आई वेलकम हिम एंड मैं उसका साथ उसका जो भी मेंबर्स उसका साथ आके ज्वाइन किया है, सबका साथ हम ये पार्टी पर सेल्फ नेक्स्ट प्रिंसिपल में काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वर्किंग चेयरमैन और ये स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर, डिस्ट्रिक्ट जो ज्वाइन कर रहा है उन लोग से, मेरा नाम है अजय गोकिया। हम बीजेपी का फर्स्ट नंबर 1 अरुणाचल में लाने वाला सिटी मापुंग था 1993 में। वो हाथी माता नानुंग में, हाथी माता में इतना तो अडवाणी से भाजपा से पुल लेके आया था। उसको हम कैपिटल में ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी खुद ही बन के, वो अकेला चल के आज हम बीजेपी को हम गवर्नमेंट बना के रखा है। तो रखने के बाद हम दिल खुशी से बीमार हो गया। बीमार होके हम दिल्ली में अब कितनी ट्रीटमेंट चल रहा है, आउट पेशेंट, इन पेशेंट नहीं है, आउट पेशेंट में दिल्ली में अपोलो में चल के बैठा है। ना आता पता बीजेपी मेरा है उसे वो क्या कही है, लेकिन कोई भी यहाँ में आके बीजेपी का ओपिनियन विजिट कहीं देखा है, वो हमें पूरा लोग बैठ के सीनियर जूनियर के हिसाब के बैठ रहे हैं। हमको देखने के बाद चिनेचा और ये तकियोतरा, ये बीजेपी मालिक अजय को क्या हार कुकरान है। तो हमको देखने के बाद सब लोग नर्वस हो गया। बोलता है हाँ, हम लोग सुनते रहता था अजय को क्या बोल के, बहुत बचपन से हम लोग सुनते रहता था। हम अभी हमारा एज जो है 60 हो गया, प्लस हो रहा है। और हम अभी कैपिटल में 1993 से मैं ग्रास रूट में वर्कर, फुल टाइम वर्कर है। मैं पोर्ट पिलो का धंधा करता भी नहीं, इसलिए आज मैं कांग्रेस में किस लिए आ रहा है बोलने से वो है कि ये लोग मेरा जितना सीनियर बीजेपी का कार्यकर्ता है, कोई लोग मर गया और अभी हम जिंदा हैं। और किरण रिजिजू भी हमसे भी जूनियर है। और 1995 में मुंबई में भी हम लोग कॉन्फ्रेंस में हम उल्टा खर्चा करता था। जितना भी MP बोलो, हाँ MLA बोलो, हम उल्टा माने हम धोनी था। उस समय हम थोड़ा धोनी था। आजकल हम दुखिया हो गया बीजेपी को मैंने बनाते हम गरीब हो गया अभी। तो अभी मैं कुछ दिन में दिल गुस्सा से हमको कोई मतलब चिंता नहीं है। ये गवर्नमेंट लोग अरे लूटने में कॉम्पिटिशन, कौन कितना लूटेगा, कोई दिया नहीं, सीनियर पीनियर से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हमने बहुत दुखी का साथ में हमने उस दिन में इमरजेंसी हम दिल्ली में जाके आम पार्टी को हमने चुन के यहाँ में हम हंगामा मचा लगाया। पूरा चिंपू तक पूरा एकदम 150 कमेटी बना के हम एक माने कैंडिडेट भी पुशअप कर रहा था, डॉक्टर तस्वर मालो पर डायरेक्ट माने वो विनिंग में बनाएगा बोले ना। लास्ट में क्या हो गया, वहाँ से सेंटर बोला कि अरुणाचल में आम पार्टी अभी बचा है, अब ये बोल में रुको 2029 में किलो हम 25 कैंडिडेट MLA कैंडिडेट लेके गया था। फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट होगा, थर्ड लिस्ट होगा, 60 to 60 कैंडिडेट हम भेजने के लिए हम कर रहा था। तो इसलिए हम देखने में बहुत छोटा है, लेकिन काम का आदमी है। हाँ, सीधा अपना से तारीफ कराए। 100 आदमी काम करा होने से, 100 आदमी काम करा और काम करा होने से हम अकेला से काफ़ी है। तो इसलिए आज मैं कैपिटल में मैं बचपन से यहाँ का खिलाड़ी है और यही में डोर टू डोर हमको जानता है, डोर टू डोर हम खेलता है। मेरा टीम बहुत है, अभी ज्वाइनिंग करने से ये भी नहीं जुड़ेगा, हाँ ये भी नहीं जुड़ेगा। आज हम मेरा फैमिली को सिर्फ लेके आया, मेरा अपना फैमिली को सिर्फ लेके आया, टीम को भी नहीं लाया। हाँ, पूर्णा सेना बीजेपी को भी नहीं लाया, अभी हम धीरे धीरे लाएगा।
और अभी यहाँ में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हम बनाने जा रहे हैं। हाँ, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हम टीम इंडिया की तरफ से हम कंपल्सरी हम यहाँ में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हम बनाएगा टीम इंडिया की तरफ से। और इसलिए आप लोग हमको साथ देना है और हम आप लोग को साथ देने के लिए आ रहा है, तो मिलजुल के सब कुछ होता है। और इसलिए आप लोग सीनियर जूनियर का ऐसा नहीं करना। हमको बीजेपी में जूनियर सब करते करते सीनियर को भी लात मार दिया। अभी यहाँ में हम सबसे एकदम आप लोग का अंदर में सबसे जूनियर होके आ रहा है। फिर काम को देखना चाहिए, काम को देखना है। वो ग्रास रूट का आदमी, वो हाई लेवल जाता भी नहीं। हम 24 दिन रात आप लोग इंक्वायरी भी कर सकता है। अभी निकलने से भी अभी हम घूमने जाएगा, कैंपिंग करके घूमेगा। वो अपना से फुल टाइम, वो नौकरी नहीं है, वो बिजनेस करता नहीं है, वो हजरा करता नहीं है। वो ऐसे पॉलिटिशियन अपना से पान गिनती को अपना पान गिनती बना के रखा है। वो पान गिनती का बड़ा सरा को लेके तेल डाल के अपना काम करे। प्रोफेशनली हम ये बचपन से मेरा सेक्रीफाई है। हम ये मैं पार्टी में ही मैं लगा रहता हूँ। इसलिए कांग्रेस में अभी हम आ गया, आप लोग को हम भी साथ देगा, आप लोग भी हमको थोड़ा गाइडेंस देने से अच्छा रहेगा। तो अब हम भी ये कैपिटल में ये यहाँ से फाउंडेशन है, यहाँ हमारे कैपिटल में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट बनाया बोलने से हम स्टेट में पूरा से पूरा इफेक्ट हो जाएगा और कांग्रेस का टिकट लेने वाला दुनिया भर का आ जाएगा। तो आप लोग का अच्छा होगा। तो कैपिटल को फुल रिस्पॉन्स हो जाएगा क्या देखिए। हाँ, फुल रिस्पॉन्स हो जाएगा क्या आपका रिक्स है। आप गवर्नमेंट बना के देखा बोल के हमको आप लोग गारंटी दीजिए। मैं बना के देखो, मैं अभी मेरा पास 20 कैंडिडेट है। हम आम प्रतिशत कर रहा था, लेकिन आम को भी देखा है तो वैसे अभी होने वाला नहीं। तो हमने अभी ये हमको छोड़ता नहीं है मेरा वो ये सेक्रेटरी साहब, ये वो हमको छोड़ता, दिन रात मैंने सुनने देता नहीं। बोले साहब आयन और ये एक तो नीलाम था, वो बुरा आदमी, वो भी छोड़ता नहीं, सिटी का सेक्रेटरी है बोल के। हम बोले हमको थोड़ा टाइम दीजिए, नाम भी देख ले। तो इसलिए अभी बहुत अच्छा है। अभी का ज्वाइनिंग भला तो बहुत लकी है। टीम इंडिया का बहुत अच्छा है। नहीं करके छोड़ देता ये लोग हमको, हम बना दिया, उन लोग का आके बैठ गया। हाँ, तो हम इसलिए मेरा हम भाषणबाजी नहीं कर देगा, फिर भी हम भाषणबाजी ज्यादा नहीं करता है। काउंसलिंग बहुत तगड़ा है। हाँ, हम अपना जो तारीफ इंडिविजुअल मैन टू मैन का काउंसलिंग हम बहुत तगड़ा है। इसलिए मेरा कैंपेन जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव करके दिखाने, इसलिए भाषणबाजी तो हम ज़्यादा मैंने हमको दिखाई नहीं देता है। आप लोग, हम ग्रास रूट का आदमी है, काउंसलिंग में घूमता हूँ और पार्टी को आगे बढ़ाने में बहुत हम अपना से तारीफ कर रहे हैं। पार्टी बढ़ेगा आगे और यह म्यूनिसिपल गवर्नमेंट बनेगा। बस और जिंदाबाद। Our president, very lovable, our Bashir Sriram ji and his colleagues, और आज जो भी आए हुए हैं यहाँ कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए, सभी को वेलकम। खुद का बारे कुछ नहीं बोलूँगा, वो साथ रह के एक दूसरे को पता चलते जाएगा। और आज जो भी ज्वाइन किया है, बस मेरा एक ही मैसेज है कि आप लोग मतलब यहाँ आके हम लीडर बनेगा, कमाएगा, पावर में बैठेगा, ऐसा सोच के बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए। आइडियोलॉजी को पसंद करके, कांग्रेस का आइडियोलॉजी जो है, जो इसका जो लिबरल इसका कैरेक्टर है, जो इसका सेकुलर नेचर है, इसको पसंद करके आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए। नहीं तो आप लोग लास्टिंग नहीं होगा, फिर नेक्स्ट टाइम किसी और पार्टी में। ये मेरा फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी हम ज्वाइन कर रहा है। लीडर भी बहुत बन के था दिल्ली में, अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन दिल्ली का सेक्रेटरी बना, गलो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना, ऐसा करके प्रैक्टिस करके भी है अभी 2013 से। तो मतलब सोसाइटी में लीड करके सोसाइटी को कैसे चेंज करेगा उनका सोच रहा था। तो सोसाइटी लीडर बन के कभी सोसाइटी को चेंज नहीं कर पाएगा। चेंज करना है तो पॉलिटिकल पार्टी में आप घुसना ही है। और पॉलिटिकल पार्टी घुसने के लिए बीजेपी और कांग्रेस जो है, और आइडियोलॉजी को आप देख लीजिए, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस एक सेकुलर लिबरल जो एक सबको साथ लेके चलता है, लेकिन बीजेपी का आइडियोलॉजी आप लोग पता है। तो मेरा पास ऑप्शन ही नहीं है कांग्रेस को छोड़ के। प्लस असी तकम संजय से लेकर नवम तुकी सर से लेकर कांग्रेस को ही एमपी आज तक बहुत मरते आया है। तो सोचा कि क्यों ना हम एज ए एडवोकेट ज्वाइन करके कांग्रेस को कुछ मेरा तरफ से एज ए एडवोकेट सर्विस दे सकता है तो मतलब देगा करके। और आई एश्योर किए अब वो प्रेसिडेंट को
एज ए एडवोकेट हाई कोर्ट में हूँ, जो भी काम पार्टी आप हमको देगा, आई विल डू इट टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। इतना एश्योरेंस देता है। थैंक यू। Maybe good morning or yeah, maybe good afternoon. Namaste everyone. So before delivering the border speech, I would like to submit my joining this love letter to the Congress Party, Honorable President, and after that again who are accompanying with me from 12 Pakistan Assembly constituency. So may I request the President to receive the joining letter from Thank you, Honorable President, for receiving our joining letter. So most respect the goes to Honorable President Sri Boshiram Siramji, who are young and dynamic of the Congress Party. My respect goes to also Vice President Protocol, Achi Tagitichi Tara, and Achi Tanga Bialang, and Achi Tabataki, and Madam Tokomina, Bingya Hasi, and all the dignitaries who are dies over here. And my respect goes to all the Arunachal Pradesh Youth Congress Committee, Mahila Congress Committee, NSUI, and the representative of the various parties, and ladies and gentlemen. First of all, I am very much thankful to the living God, जिन्होंने हमको इतना साल तक जो रखा, इतना साल तक हमको जो पाल के रहा। सेकेंडली, मैं इन छत्र छाया को देने वाला को जो कांग्रेस जो कितने सालों से जो इस मंच को जो रक्षा करके जो इस जगह को रखने वाला, इस जमीन को देने वाला, मैं उन वासियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। एंड आफ्टर दैट आई ऑल्सो थैंकफुल टू जो हम लोग का जो कांग्रेस को जो जन्म देने वाला जो एलेन ऑक्टावियन जो ह्यूम है, जो 1885 में जो उनको जो फाउंडेड किया है, तो उनके जो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट जो WC बनर्जी जो मुंबई में जो ये करके इनको जो ओल्डेस्ट पार्टी को जो वो फॉर्म किया है, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। सो मैं सभी को एड्रेस लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो पहचानने वाला, और साथ साथ में इनको जो एड्रेस करते हो, मेरा जो पाकिस्तान का जो इंचार्ज है जो मामंग ताकसिंग आची है, इसका बाद मेरा प्रोटोकॉल में ये आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का जो जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन मेरा अपना फरीमर में होने से मेरा चाचा अच्छी तैयार, और सभी को मैं दिल से मैं धन्यवाद देता हूं जो इन जो समय को देने के लिए। सो मेरा यहाँ में कांग्रेस में ज्वाइन करने का वजह जो है, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो रेस्पेक्ट करते हुए, जो सेक्युलर को जो अच्छा से जो रखते हुए, उनको जो पालन करने वाला, इसलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इसलिए मैंने आज में ज्वाइन किया। जो हर धर्म को भेदभाव नहीं करके हर धर्म को जो इक्वली रखता है, इसलिए मैं इन सैल्यूट के साथ में ये कांग्रेस फैमिली में मैं आज एंट्री कर रहा हूँ। नंबर 2 जो है, इस मंच में, इस कांग्रेस में जो गौतम बुद्ध ने जो जिन्होंने कहा था कि लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो, ये कांग्रेस पार्टी वो मंच है
जो दूसरों को भी जीने देता है, अपना भी जीने देता है। सो आई एम वेरी मच फेटफुल ऑफ दिस प्रिंसिपल। और एक है अभी जो मेरा जो जितना जो इंटायर टीम है, जो अभी कांग्रेस का ओल्डेस्ट लोग जो कुछ पेज लोग नहीं आया, जैसे आउकुमर लोग नहीं आया है, तुकी शाह लोग नहीं आया, और भी कुछ लोग हैं। और मैं कहीं ना कहीं उनको मिलने के लिए मैं हमेशा ढूंढते रहेगा कि कहीं ना कहीं उन लोग से मिलके हमेशा आप लोग से एक सहयोग मांगते रहेगा। पॉलिटिकल में मेरा जो फर्स्ट ऑफिशियल अच्छा एंट्री जो ये मेरा फर्स्ट है ये जो, और प्रोफेशनल में मैं देख के मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ। मैं वहाँ से घर से मैं निकल के ज्वाइन कर रहा हूँ अपना पाकिस्तान से। सिंगल डिस्ट्रिक्ट है, सिंगल कंस्टिट्यूंसी है। और उन्होंने लास्ट ईयर मैंने इलेक्शन में हारा, वहाँ में लोकतंत्र के तौर पे नहीं हारा, पैसे की वजह से हार गया। तो इसलिए मेरा जो पाकिस्तान का टीम को मैं वासियों को मैं बोलता हूँ कि आप लोग घबराना नहीं है। आज अगर हर जगह में हारने वाला लोग तो जीतने वाला जगह में रूलिंग में ढूंढता है, हम लोग जो है जो अपोजिशन में ढूंढता है, इसका मतलब वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड अप अगेन। हम लोग फिर से हम लोग हम लोग में क्षमता है, इसलिए हम लोग आज यहाँ में ज्वाइन किया है। और मैं विश्वास करता हूँ कांग्रेस पार्टी जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट अमंग द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, और जिस देश को जो आज़ादी देने वाला, जिस देश को हिस्ट्री जो राचने वाला, वो कांग्रेसी है। तो ये कांग्रेस में आज मैं आपको लेके आ रहा हूँ। और मेरा पाकिस्तान का जो लोग का जो विश भी ये था कि डोंगरी गोलो आप कांग्रेस में पहले ज्वाइन करना चाहिए था। तो मैं आज ज्वाइन कर इस माध्यम से, इस मंच से, पवित्र मंच से मैं बोल रहा हूँ मैं आज कांग्रेस में आ गया हूँ। हम लोग सब मिलके पाकिस्तान को जो हाई ऊंचा में हम लोग ले जाता है, ये सब लोग का जो छत्रछाया ये लोग का ब्लेसिंग के द्वारा से। और मैं कुछ तो कहना नहीं चाहूँगा, जितना भी जो आया मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि हम लोग का जो निशी का एक कहावत है, बदरे सले सले बदर बोलते हैं। आज हम लोग बदरे, दैट मीन्स हम लोग धीमे जो हम लोग जो है ये समुद्र जैसे वाला नहीं है, हम लोग एक आज बहते हुए हैं, काल में हम लोग फिर उसको हम लोग घेरो कर लेगा। ये उम्मीद के साथ अच्छी बोशीराम का साथ में हम लोग सब मिलके चलना है। पक्का हम लोग काल हम लोग जो है सले बनेगा। सले जो आप लोग इसी ये माते तागी से पूछ लेना, हो अच्छा से बताएगा बदर क्या होता है। और हम लोग जो हम लोग का अपना एक नेचर का एक विश्वास है, नदी जो है अपना रास्ता को कभी ना कभी दिन काट के जाएगा ही जाएगा। क्योंकि ये नदी को इस देश को जो नदी जो रास्ता दिखाने वाला जो कांग्रेस पार्टी है, वो कांग्रेस जो हमेशा फिर अपना जो नेचुरल फिनोमेना अपना नेचर में फिर अपना रास्ता काट के जाएगा। ये विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ना है। तो बहुत सब कुछ कहने के लिए है, लेकिन 5 minutes have been mandated by the chairman of this meeting। तो कभी दिन अगर कहीं फुर्सत मिलेगा और भी मैं शेयर करूंगा। और मेरे आज एक एडवोकेट एक आज दोस्त ने बोला कि हम लोग का जो है लीगल फ्री सर्विस मैं भी ऑफर करता हूं। जो भी फ्री लीगल सर्विस, जो भी अगर कुछ ये होने से फरमाइश है, कुछ नहीं होने से आई कैन सजेस्ट। अगर टाइम नहीं दे पाने से पक्का मैं लिख के तो टेक्स्ट कर सकता हूँ कि इसमें आप जो सहयोग ले सकता है। दैट्स मच डोंगरी गोलो कैन डू। इतना तक मैं आप लोग को मैं बोलता हूँ। और मैं जितना जो है आज जो आया हुआ है सर, कुछ लोग जो है अच्छी बोशीराम से मेरा कुछ लोग जो रास्ता में बता गया, क्योंकि कांग्रेस ज्वाइन करते वो लोग, मैं पहले तो प्लानिंग किया था कि हम अकेला ज्वाइन करेगा, लेकिन ज्वाइन करने सुन के सब लोग अपना से वो आ गया। और भी कुछ लोग रास्ता में, तो उसको बाद में घर में आने देके खाना खिला के वापस ले चला जाऊंगा। तो इसलिए जो भी आप लोग जो है सक्षम से आप लोग बैठिए। और जितना जो अरुणाचल हम लोग जो अभी जो आची बोशीराम श्रीराम के साथ और उनका सीनियर जितना सीनियर है हम लोग जो है उनके साथ मिलके चलूँगा। और एक मेरा से छोटा भाई का एक सुझाव है, आदमी हम लोग अभी एक परिवार है, ये जैसे कि हम लोग का निशी कहावत में जो चंचर बजर हाई बड़ी बोलते हैं, इसमें वो चुकली सवाल मारने वाला आएगा। बहुत जो चुकली मारने वाला हम लोग को तोड़ने के लिए चुकली मारने वाला कहाँ से आएगा, वो चुकली को हम लोग सुना नहीं। अगर सुनेगा हम लोग परिवार तोड़ जाएगा। इनको नहीं तोड़ने के लिए इन चीज़ को हम लोग जो है बाउंड्री बनाना है। सो मैं इस सब के साथ मैं सभी को नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। इस मंच पर 2 मिनट 3 मिनट के लिए मौका दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रेस्पेक्टेड
to our PCC President, former Education Minister Achi Bosram Siram जी, मंच पर बैठे हुए वाइस प्रेसिडेंट मैडम मीना तको जी, मंच पर बैठे फॉर्मर होम मिनिस्टर अची तंगा बैलों जी, वर्किंग प्रेसिडेंट APCC, वर्किंग प्रेसिडेंट अची तगीतरा जी, बेंगा आशी जी, जनरल सेक्रेटरी APCC, अची तबा तकी जी, वाइस प्रेसिडेंट, and all my colleagues. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहाँ भाषणबाजी देने के लिए नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपना समय इसलिए दे रहा हूँ। सबसे पहले गोलो भाई, आपने जो आपको दरवाज़ा दिखाने वाला, आपको मेरा नाम को लिया नहीं, फिर भी आपने भूल हो गया हो, इंचार्ज का नाम को आप नहीं बताया फिर भी कोई बात नहीं, कभी कभी भूल हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको चेहरा दिखाने आया हूँ। मैं पाके केशम डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हूँ, मामंग तक्षम, महासचिव अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। और आज मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जो पाके केशम डिस्ट्रिक्ट से एक इंचार्ज होने के नाते गोलो दुंगली भाई जी आपकी जरिए तमाम लोगों को लेके आया, तमाम लोगों ने कांग्रेस को सौंपा। पार्टी में इतना जो कि पार्टी है, काफ़ी पार्टी है, सभी पार्टी को जो कर आज नेशनल पार्टी को आप चुना, हमारा कांग्रेस पार्टी को चुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको एक मैं पाके केशम डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होने के नाते हमारे जो अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से और हमारे PCC प्रेसिडेंट अची बसरम सिंह साहब की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हम चाहते हैं आप सब एक परिवार हो गया। कल को मेरा जो स्पेशल मैसेज जो है कि पाके केशम डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि मुझे उसमें ड्यूटी दिया गया है, चलो हम सब उसमें मिल के काम करते हैं। पार्टी में जो आया है हम लोग सब मिलना है, छोटा गलतियों को हम सब नज़रअंदाज करना चाहिए। इसलिए हम विश्वास करता है कि बीजेपी का मुक्त पाके केशम से शुरू होगा और आप लोग भी शुरू कराना है। आप और हम मिलके योगदान देके कांग्रेस को पाके केशम से जिंदा कराना है और हमारा स्टेट में लाना है और केंद्र तक पहुंचना है हमारा जो कवरिया को। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जितने भी जो यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए हमारा कांग्रेस परिवार आया है, आप सभी को भी धन्यवाद। और लास्टली में मेरा बात को मैं यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। इंटरनेशनल कांग्रेस अरुणाचल यूनिट श्री बोसीराम सिराम जी, मेरा कोलीग पिची तागी तारा जी वर्किंग प्रेसिडेंट, और मेरा कोलीग जितना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज अरुणाचल कांग्रेस कमेटी का नेतागण। आज का सब नाम नहीं ले सकेगा, आज का ज्वाइनिंग करने वाला आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसे हम तो पार्टी में इस बार मैं नया जैसे आए पार्टी पुलियो में। लास्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में कुछ समय किया था, पहले अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्लॉक प्रेसिडेंट एक टाइम किया था। PCC में ये पहला बार है, इसलिए हमको देखा ही नहीं देता है। हम 1974 का नहीं 76 का हम कांग्रेस ज्वाइन किया हुआ है। हम लोग सबनश्री डिस्ट्रिक्ट था, पपम पारे कोरोंग कुमे अपर सबनश्री लेके उस समय में 0 में हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, वहाँ हम ज्वाइन किया था। ऐसे करके आप लोग बहुत अच्छा किया है। लास्ट में ज्वाइन करके पहले नहीं हुआ, अभी पहले ज्वाइन हुआ है, अपना प्री प्लान बना सकता है, अपना ऑर्गेनाइज कर सकता है। अभी ज्वाइन हुआ है, अच्छा हुआ है। कोई लोग ऐसे नहीं कि लास्ट में हमको टिकट दो, ये करो वो करो बोल कर ना
डिस्टर्ब करता है, ये थोड़ा गलत होता है, फील्ड में प्लान नहीं कर पाता है। आज आप लोग ज्वाइन किया है, जैसे एक खाब आदमी बोलता है ना, नदी में डाब के मरने से ठंडा दिन में जो डाब के मरता है ना, इसको पानी वाला का बूढ़ लोग बोलता है कि हमारा गरीब को देख के आया है, इसलिए इसको अच्छा से ख्याल करेगा बोलकर। गौरम जी दिन में जो डूबता है, अरे अब मेरा धोनी को देख के आप आया है, ऐसे बोलकर इसको डिस्टर्ब ज़्यादा करता है, बोला बुद्धि को भी ज़्यादा टुकड़म कर देता है, बोला है। इस टाइप का कांग्रेस लास्ट 10 ईयर से बुखर होकर बैठा हुआ है। बुखर बीमार लगा ना, सर्दी लगा बैठा हुआ है, जिंदा है मुर्दा नहीं है, दिल है मुंह से नहीं बोल सकता है, इस टाइप का ऐसे होकर बैठा है। कांग्रेस में मरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस का आइडियोलॉजी का आप सब जानता है। जितना भी बोलो होल इंडिया का जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, सबसे अच्छा पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी तो कांग्रेस से है। जितना धर्म है, जितना जाति है, जितना कम्युनिटी है, इसको नदी को लेकर, पानी को लेकर, जंगल को लेकर, पेड़ पौधा को लेकर, आदमी को लेकर एक साथ देना डील करता है, सबको बराबर मानता है। महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी को अभी तक एडप्ट किया है। ये अम्बेडकर का आइडियोलॉजी को अभी तक कांग्रेस भूला नहीं है, इसको मेंटेन करते रहा है। लेकिन बाकी पार्टी में किसी किसी का अपना स्टेट रीजनल इशू में पार्टी फॉर्म हो जाता है, किसी में धर्म को लेकर, जाति को लेकर, इसको बेस करके पार्टी फॉर्म हो जाता है। ये बीजेपी पार्टी भी तो आरएस बेस, हिंदू बेस पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप सब देख रहा है आरएस का बैकिंग में तो चल रहा है ना। कांग्रेस तो किसी का भी बैकिंग नहीं है ना, आम आदमी का साथ, गरीब आदमी का साथ, माइनॉरिटी का साथ, सब धर्म का साथ मिलकर कांग्रेस चलता है। इसलिए कांग्रेस बहुत अच्छा पॉलिटिकल पार्टी है। इसलिए हम लोग पीसीसी का तरफ से तो हम लोग सोच रहा है कि या एआईसीसी का तरफ से या पीसीसी का तरफ से सोचता है, हम लोग 2 किलोमीटर दौड़ने से भी दौड़ेगा सोच रहा है, या 20 किलोमीटर दौड़ने से भी दौड़ेगा सोच रहा है। लेकिन हमारा साथ 2 किलोमीटर चलो दौड़ेगा बोलने से दौड़ने वाला साथ देने वाला नहीं है। कोई लोग 5 किलोमीटर में गायब हो जाता है, कोई लोग 2 किलोमीटर में गायब हो जाता है, 100 किलोमीटर नहीं पहुंच पाता है। इसलिए कांग्रेस का कमजोर है। अभी भी ये है, आप लोग कुछ समझ के कांग्रेस का आइडियोलॉजी को अच्छा से देखे, अगर आया तो भूखा होने से भी, प्यास होने से भी, भूखा प्यास को बेच के पेटी में बेल बांध के पार्टी का काम करना पड़ेगा, या आकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, बेनिफिट कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग सरकार नहीं बनाएगा। अभी अपोजिशन में है, हम लोग भूखा होने से भी, प्यास होने से भी, हम लोग भूखा को भी कंट्रोल करके, प्यास को भी कंट्रोल करके हम लोग पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा, पार्टी को आइडियोलॉजी को मेंटेन करना पड़ेगा। स्पेशली हम लोग का बीच अंडरस्टैंडिंग होना है, दूसरा जो बरकरार है इसको नहीं सुनना है, हम लोग यूनिटी में रहना है, मोहब्बत में रहना है, तो हमारा अच्छा होगा। एक आदमी 3-4 आदमी मिलके एक आदमी का जैसा होना पड़ेगा, तब ताकत आएगा। जैसे हमारा एक चीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, अभी तो हम लोग बहुत खुश है, आप लोग आया बोलकर, सिर्फ आप लोग को नहीं बोलता है, इस कॉमन बोलता है ना, आप लोग भी कर्म मत पाइए। फिर हम लोग कुछ समय के बाद निकल जाना से हम लोग आधा मरा हो जाता है, ऐसे नहीं करना, यहाँ से फिर दोबारा वापस नहीं जाना।
नेक्स्ट इलेक्शन तक वेट करना और दूसरा काम में भी वेट करके रहना है। पार्टी का ये डिसिप्लिन को मेंटेन करके, पार्टी को आइडियोलॉजी को मेंटेन करके रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करके अभी हमारा रिक्वेस्ट तो है, अरुणाचल में जितना भी, अरुणाचल में एक कर्म क्यों हुआ है, टिकट मिलने वाला तो पार्टी का एमएलए तो ऑलरेडी आए, पार्टी का मंत्री तो ऑलरेडी आए, इसका पीछे हमको टिकट मिलेगा बिल्कुल लाइन लगा के वहाँ बैठ रहा। टिकट तो यहाँ खाली है ना, या क्यों नहीं आता है? लास्ट 2 टर्म इलेक्शन में देखा है। ऐसे करके ओपोजिशन नहीं बैठ सकता है, वहाँ जाने से भी कुछ तो नहीं मिलता है। काश देखने से, पार्टी का नाम लेने से अच्छा लगता होगा, रूलिंग का नाम लेने से अच्छा लगता होगा, उतना ही होगा। अपना आइडियोलॉजी को, अपना सिस्टम को मेंटेन करने से अच्छा है। अगर वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा तो उधर क्यों जाना है? उसको बूट नहीं मारा है तो उसको पीछे क्यों हम लगेगा? शर्म खिलाएगा ना। इसलिए हमने 2 साल में हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? आदमी देखने से अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे अगेंस्ट भी खेल के हारने के बाद उसको पास कुछ मांगने के लिए जा रहा होगा, वो सोचेगा ना, नहीं मुख से नहीं बोलने दिल से ऐसे सोचेगा तो नहीं जाता है। इसलिए आप लोग से विनती है, रिक्वेस्ट है, जितना भी आज ज्वाइनिंग हुआ है कांग्रेस परिवार में, आप लोग लास्ट टाइम से रह जाइए। और दूसरा का लोबिया ऑफर करने वाला को भी मत सुनिए, अच्छा से डिसिप्लिन मेंटेन करके रखकर जो लोग एमएलए कैंडिडेट करना है इसको सपोर्ट करना है। वो सब नहीं बोलना है कि हमको भी टिकट चाहिए, हमको भी टिकट चाहिए, वो भी नहीं बोलना है, पाजिलिंग हो जाता है। एक यूनिटी रहना है, एक यूनिटी रह के एक असेंबली सेगमेंट में एक आदमी जिसको भी टिकट मिलेगा उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और एक बात ये है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में अगर रहना है तो मेन होता है, मेन हथियार होता है, आप इशू उठाना पड़ेगा। इशू छुपा कर रखेगा तो नहीं होगा, इशू तो उठाना पड़ेगा। करप्शन का हो, दूसरा भी हो ना, इशू को तो रेज करना पड़ेगा। बिना इशू रेज करके क्या होगा? वो तो पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग नहीं रहेगा। और एक बात हम ये मुख्यमंत्री जी से भी बोलता है, हमेशा बोलता है हमारा करप्शन तो हम 0 टॉलरेंस है बोलता है। अरुणाचल में करप्शन तो काफ़ी है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सर्कल में, कोना कोना में, कैपिटल में भी बहुत करप्शन है। अभी तक एक ऑफिसर भी एक्शन नहीं ले आए तो मतलब टॉलरेंस नहीं है बोलकर हम 0 टॉलरेंस बोलने का मीनिंग क्या रहेगा? करप्शन तो हाई है, करप्शन नहीं बोलकर तो कोई भी क्लियरेंस नहीं दे पाएगा। आपका फॉरेस्ट में कंपा का स्कैम कितना पैसा आता है पब्लिक मालूम है? इसको मालूम नहीं होता है ना, ये भी तो करप्शन है। रिहेबिलिटेशन में कितना आता है, पब्लिक को तो अकाउंटेबल नहीं दिखाता है। इसमें सिस्टम बना कर रखा हुआ है, बाकी पैसा खा जाता है। फायर एक्सीडेंट में 5,000-6,000 रुपये देता है, इसमें तो कुछ नहीं है ना। इसलिए ये चीज़ को भी थोड़ा देखने से आप लोग अच्छा होगा। हम लोग एक साथ रहने से अच्छा होगा, प्रॉब्लम को, इश्यू को उठाना। लेकिन हम ज़्यादा टाइम नहीं दिया है क्या, इसलिए आप लोग अच्छा से सेटिंग करके आज से एक साथ पीसीसी के साथ एक साथ एक यूनियन में बैठ के जो भी प्रॉब्लम होगा एंट्री मिशन करके पुलिस प्रोग्राम को भी यहाँ से कौशल करके आप लोग करने से अच्छा है। इसलिए आज का जो जोनिंग प्रोग्राम बना के जितना भी जोनिंग किया है, भगवान को भी हमें मेरा तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा, इन लोगों को कुछ तकलीफ होना नहीं देना है, तो बीमार हाजिर होने मत दो, इसको अच्छा से लाइफ
देना है, अच्छा से देने कोशिश मर्जी से अच्छा कोशिशें देने दे दो बोल के भगवान से भी मैं मेरा तरफ से प्रार्थना करता हूँ। मैं इतना बोलकर समाप्त करता हूँ। जय हिंद। आप सभी का नमस्कार। आज के इस जॉइनिंग कार्यक्रम पर उपस्थित हमारे एपीसीसी के दोनों वर्किंग प्रेसिडेंट श्री तांगा ब्यालिंग जी, श्री तेसी तागीतारा जी और वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती मीना टोको जी और ताकी तावा जी और जनरल सेक्रेटरी काम बीएससी के चेयरपर्सन आसी बेंगिया जी और सभी उपस्थित जनरल सेक्रेटरीज और महिला के अध्यक्षा, उनके सभी साथीगण, युवा साथी, फ्रंटल हेड्स और खासकर आज जिस प्रोग्राम के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं, हमारे सभी आदरणीय नेतागण, श्री बांदे मिली जी, एडवोकेट मेपे एते जी, श्री ताहान मुइबांग जी, एडवोकेट डोंगली गोलो जी, श्री रिया पापू जी, श्री गोलो तालांग जी, श्री तात नीप जी और श्री गोकिया अजय जी एवं उनके सभी साथ में आए साथीगण, बंधुगण, सभी उनके पार्टी के कार्यकर्तागण, मीडिया बंधु, उपस्थित देवी और सज्जने, आज हमारे अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी इकाई के लिए बहुत बड़ी दिन है एवं गौरवशाली दिन है हम सब के लिए, क्योंकि हमारे जो कोई दोस्तों ने दूसरा पार्टी से यानी कि दूसरी पार्टी से आज हम सब के बीच यहाँ राजीव गांधी भवन पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके लिए मैं अरुणाचल कांग्रेस इकाई की तरफ से, राज्य इकाई की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद प्रदान करता हूँ। आप सभी आने से हम सभी का दिल का मनोबल बुलंद हो गए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग दोस्त के लिए अपना मित्र यानी कि दोस्त फ्रेंडशिप सर्कल ढूंढ रहा था, लेकिन हमारा जो सपना, अधूरा सपना आज आप सबके बदौलत साकार हुए हैं। फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। पार्टी में आप सब जो आए हैं सभी नया नेता नहीं है, पुराना नेता है। हर एक पार्टी में अन्य पार्टी में रह चुका है और कुछ लोग कांग्रेस से भी कुछ साल पहले पिछड़ के चले गए। आज आप सब के लिए भी ये
गौर वापसी यानी कि होम कमिंग है। तो यहाँ कोई आज ज्वाइनिंग होने का बाद नया पुराना का बात नहीं होगा। हम लोग एक परिवार हो गया और एक परिवार जैसा रहेगा। काल को कुछ भी समस्या होगा हम सब मिलके रहेगा, बात करेंगे मिलके, जो भी खाने का होने चाहिए मिलके बांटेंगे, मिलके खाएंगे, मिलके पिएंगे, दुख तकलीफ में भी हम लोग साथ देंगे। इसी कमिटमेंट का साथ हम सब मिलकर या हम सब चलना होगा। ये मैं आप सबसे भी अनुरोध है। और कांग्रेस पार्टी मेरा सिर्फ नहीं है, ये किसी का पार्टी नहीं, हम सब का है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, आज़ाद दिलाई, और कांग्रेस पार्टी ने ही अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का रूपरेखा दिया था। और उसके बाद एक समय 1987 में स्टेटहुड का हमें दर्जा दी गई है। तो जो भी अरुणाचल प्रदेश में काम किए गए हैं कांग्रेस का माध्यम से ही हम सबको देखने का मौका मिला। मैं अन्य पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, खराब नहीं बोलूँगा, लेकिन उन सब का कोई प्रमाणित नहीं है। जो कांग्रेस ने घर बना के गए, जो कांग्रेस ने एयरपोर्ट बना के गए, फंडिंग दे के गए, गुवाहाटी हाईकोर्ट कांग्रेस का समय में किया वाला है। फिर रेलवे स्टेशन जो नाहरलगुन में है कांग्रेस समय का है, लेकिन उद्घाटन कांग्रेस के लिए फिर कांग्रेस को मौका नहीं मिला। दूसरा पार्टी सिर्फ उद्घाटन उन्होंने किया, पान दिया कांग्रेस समय में, बनवाया कांग्रेस समय में, थोड़ा सा कंप्लीशन के लिए बसा हुआ था। फिर दूसरी पार्टी आ गई, फिर उद्घाटन करने में लग गए। तो उन लोग का भी थोड़ा श्रेय है, उद्घाटन करने में उन लोग ने मौका मिला, उसके लिए उन लोग का भी नाम है। लेकिन ज़्यादातर 90% जो विकास कामों में कांग्रेस भागीदारी है। और साथ ही साथ आप आज का असेंबली बिल्डिंग देखिए, सेक्रेटरीट देखिए, ये सब कांग्रेस का समय का किया वाला है। तो आज आप सब आके हम सब का दिल का दरवाज़ा खुल दिए हैं, हमारा आंखों को रोशनी दिए हैं। एक आई ओपनर के रूप में आप सब ने कांग्रेस पार्टी को आज कर दिया गया है। इतनी मात्रा में, बड़ी तादाद में आप सब ने ज्वाइन किए और उससे हमारे अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छी मैसेज जाएगी। इसके लिए भी मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूं। और अभी मेरा साथी लोग से भी, फ्रेंड सर्कल से भी, आप सब से भी मैं बताना चाहूँगा, अभी और भी पाइपलाइन में है, क्योंकि सब कांग्रेस में अभी आना चाहता है। अभी कुछ लोग ने आज ज्वाइन करना था, यानी कि 3-4 हज़ार एक बार ज्वाइन करना था, लेकिन उन लोग का फिर आपस में सलाह मशवरा, कोई लोग बाहर में हैं, इसका चलते उन लोग आज ज्वाइन कर नहीं पाया। लेकिन उन लोग से भी मैं बातचीत जारी कर रहा हूँ और अन्य लोग से भी, बहुत बड़े बड़े नेता जो अरुणाचल के लोग हैं, बहुत लोग आगे आने वाला दिन में ज्वाइन करेगा। कुछ लोग ज्वाइन करेगा इस महीना, इस साल का अंत में, कोई लोग नया साल में ज्वाइन करेगा। तो हम सब के लिए बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य होने वाली है। तो इसके लिए श्रेय आप सब के ऊपर जाता है। खासकर जो लोग कांग्रेस को
रखवाली करके हर साल हर समय बीते दिनों में जितने भी यहाँ ऑफिस बेयरर गण हैं, जनरल सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट्स एंड ऑल फ्रंटल हेड्स, ये सब आप सब का बदौलत साकार हुए हैं और भविष्य में भी और भी साकार होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। उसका श्रेय आप सभी को ही जाता है। तो साथ ही साथ जो लोग आज आए हैं, मैं आप सब से विनती करता हूँ, आज आप लोग ज्वाइन किए हैं तो साथ ही साथ मेंबरशिप फॉर्म भी आप लोग लेके जाइए, फिलअप कीजिए। आज कुछ लोग नेता लोग यही मेंबरशिप फॉर्म फिलअप कीजिए और बाकी के लिए भी लेके जाइए। जब तो हम लोग मेंबरशिप फॉर्म फिलअप नहीं होंगे फिर वो रिकॉर्ड नहीं रहेगा। मेंबरशिप फॉर्म ही हम लोग के लिए एक माध्यम है जो भविष्य में भी ये एक प्रमाणित पत्र बनेगा और हम सब के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए फिर हम लोग को भी, क्योंकि आप लोग आए हैं तो और भी आएंगे, लेकिन जो भी कम से कम पोर्टफोलियो के ही अगर खाली है तो वहाँ भरने में, आप लोग को देने में, हम लोग मिलाने में काम आएगा। तो आप सबका नेता लोग का बायोडाटा भी हमें ज़रूरी होगा कि बायोडाटा देने से हम लोग कहीं ना कहीं पोर्ट में आप सबको भी डालेगा। सबको तो एक साथ नहीं डालेगा, पेज वाइज बात करके जिसको जहाँ ये होगा सुविधा होगा वहाँ डाला जाएगा। और खासकर मैं आप सबको बहुत अच्छा पाया हूँ, जो लोग एडवोकेट जैसे कि मेपे एटे ऑनरेबल हाई कोर्ट का एडवोकेट है और उनका साथी भी आज और ज्वाइन करना था, उनका आज केस हो गए। अनफॉर्चुनेटली केस होने का वजह से वो नहीं आ पाया, क्योंकि और गोलो जी आए हैं, डोंगली गोलो और बाकी लोग भी बहुत, क्योंकि जब भी हर काम में, हर पार्टी में, हर रिवॉल्यूशन में, हर मूवमेंट में अगर एडवोकेट जहाँ ज़्यादा शामिल होंगे वो पार्टी भविष्य में साकार होंगे। आप इंडियन रिवॉल्यूशन को भी देखिए, सबने माननीय हमारे फादर ऑफ द नेशन बापू जी यानी कि महात्मा गांधी जी खुद भी बैरिस्टर थे, एडवोकेट था। और बाकी लोग जैसे कि B.R. अम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, भारत का संविधान को ड्राफ्ट किए गए हैं, वो खुद भी एडवोकेट थे। बाकी सब ने मैक्सिमम 90% ब्रिटिश ज़माना में उन लोग जो आंदोलन को जो आगे लीड किया उन सब एडवोकेट था। तो आज मैं उन दिनों को याद करते हुए आज 3-4 एडवोकेट अगर ये आज ज्वाइन किए हैं तो हमको लगता है कि देयर इज़ ए साइन ऑफ गुड डेज, अच्छा दिन आने वाला। इस देश को, इस राज्य को परिवर्तन लाने में आप सबका काम आएगा। और हम हाई कोर्ट में काम होते हैं तो हमें एडवोकेट चाहिए। आजकल बिना एडवोकेट से कोर्ट में या ऑफिस में या कुछ दरखास्त लिखने के लिए भी बिना एडवोकेट से होता नहीं। जिस पार्टी में एडवोकेट ज़्यादा रहेगा वो पार्टी जीतेगी काल को। तो इसीलिए ये एक अच्छा संकेत है हम सब के लिए भी। और मैं आप सब से भी अनुरोध है, और भी आपका जितने भी साथीगण हैं सबको भी आप यहाँ एंट्री करवाइए, लेके आइए और हम लोग कमेटी बनाएंगे ताकि जो भी इश्यूज होंगे पार्टी का या अरुणाचल का हित में, हमारे जनता का हित में जो भी काम होंगे आप लोग का माध्यम से ही, आप सबका नेतृत्व से ही काम होगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है जितना हो सके और भी आप लोग दोस्त ढूंढ के लाइए। और इस ये माने ये मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, डोनीपोलो गांगिंग भी है, नीदर नामलो भी है, आप सब यहाँ लाइए। यही से हम लोग का अच्छा काम
भविष्य के लिए शुरू होगा। और मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी इस राज्य में सरकार बनाने में ज़्यादा देर नहीं लग सकती है। ये सामने हो सकता है अगर हम लोग धीरे धीरे, जल्दीबाजी जाना नहीं, जल्दीबाजी करने से बर्बाद भी हो सकता है। आस्ते धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाने से 2029 तक हम लोग को बहुत एमएलए मिलेगा। बहुत एमएलए या मेजॉरिटी मिलना मतलब सरकार बनाना। सरकार बनाने से पैदा किसको होगा? हम सब के लिए होगा। और मैं यहाँ आज इस पार्टी का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष बड़ा पोस्ट नहीं है, मैं आप सबको सेवा करने के लिए बैठा हूँ। मैं यहाँ बैठ के मैं प्रेसिडेंट हूँ बोल के यहाँ दादागिरी बोलने से नहीं होगा। मैं जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ बोल के पब्लिक को हम लोग धमकाने से नहीं होगा। प्यार से बात करना होगा। आप लोग से भी मैं अनुरोध हूँ, सोशल मीडिया में भी जहाँ भी किसी को पब्लिक रिएक्शन होने से भी आप रिएक्शन मत होइए, प्यार से बात कीजिए। लोगों को अच्छा मीठी बात कर लुभाना है। हम अगर धमकाएगा फिर वहाँ मेरा नेतागिरी चलने लगोगे तो पार्टी चलेगा नहीं। हम लोग मिलके चलना होगा। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन आपस में समझौता होना जरूरी है। संगठन तोड़ने के लिए नहीं, संगठन जुड़ने के लिए होते हैं। संगठन को हम लोग एक एक करके जुड़ना होगा, उसको तोड़ने के लिए नहीं। अगर हम एस बोशीराम श्रीराम प्रेसिडेंट एक एक तोड़ते जाएगा तो काल को पार्टी कहाँ रहेगी? तो पार्टी को जुड़ना है। जो आना चाहता है हम लोग को आने देना होगा। हम आप सबको देखना चाहता है, जो लोग यहाँ बैठे आप सब एमएलए बने, एमपी बने। एज ए प्रेसिडेंट मेरा ड्यूटी है आप सबको आगे बढ़ाना और मैं ये काम करता रहूँगा, मैं सेवा करता रहूँगा। जब तक साथ में है प्रेसिडेंटशिप में भी या बाहर हो, मैं तो पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। और इसी लिहाज से हम सब मिलकर काम करना होगा तो हमारे पार्टी अच्छा होगी। साथ ही साथ अभी पंचायत चुनाव होंगे, म्यूनिसिपल चुनाव होंगे। जैसे अजय ने भी बोला, आप लोग म्यूनिसिपल ईटानगर और पासीघाट में है, आप सब साथ दीजिएगा। यहाँ पंचायत हर एक गांव में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें भी आप सब अभी से शुरू कर दीजिए। किसको प्रतिनिधि बनाना है, रिप्रेजेंटेटिव किसको भेजना है, किसको पब्लिक सपोर्ट है, सिर्फ नाम से फॉर्म भरने के लिए मत भेजिए। कम से कम वो 19-20 तो होना है। आप हारने से भी तो 19-20 होना है। ओपोनेंट आपका 1500 वोट मिल गया, आप 100 वोट मिला तो मीनिंग नहीं, इसका मतलब आप अच्छा नेता नहीं। इससे प्रमाणित होगा आपका एलिजिबिलिटी, आपका क्रेडिबिलिटी। नाम से लड़ना मतलब नहीं होता, काम से लड़ना है और अपना कर्म को लोगों को दिखाना है। पब्लिक का वोट आपको मिलना है। साथ ही साथ अभी दिल्ली में आप सब देख रहा है नेशनल मीडिया, माननीय राहुल गांधी जी लीडर ऑफ द अपोजिशन, उन्होंने थोड़ा सा इस बार भी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनडीए ग्रुप सरकार बनाना था। 25-30 एमपी हमको चोट हो गया। तो माननीय राहुल जी ने हरियाणा में इलेक्शन असेंबली का हो गया, एमपी में तो कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन असेंबली में थोड़ा 10-12 एमएलए से हार गए। महाराष्ट्र में थोड़ा कम वोटों से हार गए। फिर एमपी में मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी ने मिला और बाकी अन्य राज्यों में भी ऐसे हुआ, कर्नाटका में भी ऐसे हुआ। तो माननीय राहुल जी का नेतृत्व में उन्होंने छानबीन किया, बजाय किया है। चच्ची का पब्लिक ने हम लोग को वोट नहीं दिया है क्या? ना दिया है, ना कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? बाद में पता चल गया उन लोग ने अंधाधुंध डिलेशन कर दिया, उल्टा सीधा वोट डाल दिया। फिर जो जीवित आदमी, लिविंग आदमी जो नहीं मरा, उसको भी मर चुका है बोल के वहाँ डिलीट कर दिया गया। वो उस दिन
ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाके प्रमाणित दिया। ये करके 25-30 MP सीट में थोड़ा कम वोट से हम लोग को हारना पड़ा। अगर वो कांग्रेस का पक्ष में या इंडिया ग्रुप का पक्ष में आती तो इंडिया ग्रुप सरकार आज बनना था। माननीय राहुल जी का नेतृत्व में आज सरकार बननी थी इस देश में, और माननीय राहुल जी इस देश का युवा प्रधानमंत्री बनना था। थोड़ा सा स्लिप का वजह से नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन जो सार बोलते हैं, सार मीन्स स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स का नाम से घोटाला किया गया, उन लोग ने अन्याय किया गया, इसका चलते हम लोग को हराया गया। तो इसको आप देखिए पूरे देश में एक मुहिम के तौर पर सही है, तो आगे जाके शायद अच्छा वोट में कन्वर्ट हो सकते हैं। बिहार इलेक्शन में अच्छा हम लोग को जीतने का मौका है, क्योंकि उन लोग का सुर को पकड़ा गया। तो इलेक्शन कमीशन ने माननीय राहुल जी को बोला कि आप एफिडेविट देना पड़ेगा, आपने हम लोग का सुर को पकड़ा। तो माननीय राहुल जी ने बोला मैं क्यों एफिडेविट आप लोग को दूं, आप लोग ने अपना काम निर्वहन अच्छा नहीं किया, आपने आपका ड्यूटी को अच्छा नहीं किया, गलत किया। देश का जनता आपको एफिडेविट मांगेंगे, मैं नहीं दूंगा। तो उन लोग जो इंडिया ब्लॉक इलेक्शन कमीशन में गए, रिकॉर्ड मांगा, उन लोग दे नहीं पाया। दस्तावेज पूरा इतर पितर कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि वो रखने से, दस्तावेज मांगने से उन लोग का सूरी पकड़ा जाएगा। तो बाद में उन लोग ने उसको फिनिश खत्म कर दिया गया। तो अभी तक रिकॉर्ड यानी कि दस्तावेज एविडेंस दे नहीं पाया, इसीलिए माननीय राहुल जी को उन लोग कुछ नहीं कर पा रहा है। जो माननीय राहुल जी बोला है वो सही है। सब अपोजिशन पार्टी इंडिया में अभी मूवमेंट शुरू कर दिया। जो पहले तोरा सिप के बैठा था वो भी बाहर आ गया, और यही कारण है हम लोग को हराने का। तो इसीलिए अभी मैं सोचता हूँ कि भविष्य में जो ये गड़बड़ शायद नहीं होगा। हम लोग का यहाँ भी वोट कैप्चरिंग या डबल वोटिंग या बोगस वोटिंग या उल्टा सीधा होते आई है। तो इस बार हम आप सबको भी अभी ख्याल रखना होगा, म्यूनिसिपल इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन में। और साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा, उस दिन 14 अगस्त को हम लोग ने कैंडल मार्च किया अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो आपने गड़बड़ कर रहा है बोल के हम लोग ने कैंडल मार्च किया, और हम लोग ने पूरा हर एक जिलों में, यहाँ फिर स्टेट कैपिटल में भी हम लोग ने प्रदर्शन किया। फिर उसका बाद हम लोग का 22 से लेके 7 सितंबर तक रैलियाँ, मीटिंग्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर मीटिंग होनी है। तो हम लोग ने ये रखा 29 तारीख को। 29 तारीख में आप सब लोग, जो लोग आज ज्वाइन किए हैं और जो लोग नहीं आए हैं, उन सब को भी आप लोग निमंत्रण दीजिए ये प्रोग्राम में आने के लिए। 29 तारीख में हम लोग का जो हाईकमान, ऑनरेबल हाईकमान दोनों भी आएंगे, हमारे सीनियर नेता लोग भी रहेंगे। यहाँ हम लोग 10 बजे से शुरू होगा मीटिंग, आप सब 10 बजे 9:30 तक पहुँच जाइए। और लंच यही होगा, फॉलोड बाय लंच होगा, एक दिन का ही मीटिंग होगा, जल्दी करेगा। तो ये एक प्रोटेस्ट है देश भर में। माननीय राहुल जी का नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व में एक मूवमेंट, और पूरे इंडिया ग्रुप्स, डिफरेंट पार्टी, उसमें 28-29 पार्टियां हैं, सब मिलकर ये अभी मूवमेंट हो रही है। तो इसीलिए उसका भागीदारी आप सबको बनना है। साथ ही साथ सितंबर 15 से लेकर अक्टूबर 15 यानी कि महीना भर का अंदर हमें सिग्नेचर कैंपेन होना है, डोर टू डोर। यहाँ बैठ के सिग्नेचर नहीं होगा, डोर टू डोर। यहाँ बैठ के करेगा तो हम लोग भी फर्जी हो जाएगा इलेक्शन कमीशन जैसा। इसीलिए अगर आप सब नेता है तो आपको हिम्मत होना पड़ेगा,
पड़ोसी में जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, दूर टू दूर जाना पड़ेगा। जो आदमी जो नेता दूर टू दूर नहीं जा सकता है, मतलब आप असली नेता नहीं है, तो लोग आपको नहीं पहचानेगा। पंचायत में उठने से भी, म्यूनिसिपल उठने से भी आपको वोट देगा ही नहीं, तो जुटा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ हम लोग सिग्नेचर कैंपेन करेगा, और सिग्नेचर को हम लोग इलेक्शन 5 करोड़ जैसा हम लोग इकट्ठा करके, यहाँ से तो 5 करोड़ नहीं होगा, पूरे देश से 5 करोड़ जैसा या ज़्यादा इकट्ठा करके हम लोग माननीय राहुल जी का नेतृत्व में और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व में पूरे इंडिया ब्लॉक इलेक्शन कमीशन को सौंपेंगे, और इस देश का महामहिम राष्ट्रपति को हम लोग वो जो दस्तावेज हम लोग उसको सौंपेंगे। आप देखिए, ये हम लोग एक आंदोलन मूवमेंट हो रही है कि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ करते हैं। इलेक्शन कमीशन गड़बड़ करना मतलब आपका वोटिंग राइट को गड़बड़ करना, मतलब आपका अधिकार को, हक को उन लोग छीन रहा है। तो हम लोग का अधिकार को क्यों छीनेगा इलेक्शन कमीशन? वोट देना आपका राइट है, लेकिन वोट को बेचना फिर हम लोग का राइट नहीं। हम लोग भी गलत करता है ना, रुपया देने से वोट देगा बोलता है, वो भी गलत है। इलेक्शन दूसरों को हम लोग खराब बोलेगा, फिर कुछ खराब करेगा, वो भी अच्छा नहीं। ये भी ध्यान रखना है। हमारा यहाँ रुपया पैसा धंधा में कोई लोग करता है, हम लोग तो नहीं करता, लेकिन कोई लोग करता है। ये सब भी होशियार रखना होगा। दूसरों को हम लोग बोलनाम दे के फिर कुछ खराब करेगा तो होगा नहीं, तो ये भी याद रखना है। तो आज आप सब आए, समय भी बहुत हो गया, तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल रैंक्स एंड फाइल्स फिर से आप सभी को, जो लोग आज आए हैं, ज्वाइन किए हैं, मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद प्रदान करता हूं। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ ऑल रैंक्स एंड फाइल्स एंड पार्टी ऑफिस बियरर्स, बोर्ड द वर्किंग प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज एंड सेक्रेटरीज, महिला प्रेसिडेंट, उनके साथीगण, मीडिया बंधु, आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मेरा भाषण यही मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, थैंक यू। Honorable President, Arunachal Pradesh Congress Committee, Achi Vyalanji, Working President, Barabai Achi Tegi Taraji, Working President, all the Vice President of Arunachal Pradesh Congress Committee, General Secretary, Secretaries, and the newly joined Congress Party. I, on behalf of the rank and file of the Arunachal Pradesh Congress Committee, thanks to all the newly joined Congress Party from various constituencies and districts and circle. And I also thanks to all the Congress workers who witnessed their leadership of the joining in today's program. And I also thanks the media fraternities and all the present, house presence. Thanks to all. आज अरुणाचल कांग्रेस कमेटी इस राजीव गांधी भवन पर आप सब देखे हैं, बहुत अरुणाचल प्रदेश के नेता लोगों ने ज्वाइन किए हैं। अलग अलग पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के आइडियोलॉजी को जिस ढंग से माननीय राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन, माननीय सीपी कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश भर में काम कर रहे हैं, पब्लिक का मुद्दा, लोगों का मुद्दा उठा रहे हैं, पार्लियामेंट के भीतर, राज्यसभा के भीतर लोग अच्छा पा रहे हैं। उसका चलते विभिन्न पार्टी के लोग उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का इच्छा जाहिर की,
और आज उन लोग ने ज्वाइन किया और बहुत लोग भी ज्वाइन करना था। समय तितर पितर होने का वजह से आज कम से कम यहाँ आए कम से कम 150 का लोग ज्वाइन किए और उन सब का आदमी बोलने से टोटल आज का जो नहीं आ पाए हैं बोलने से तो 3-4 हज़ार होंगे जो आज उन लोग ने मेंबरशिप लिया। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा हम्बल बिगिनिंग है और मैं तहे दिल से उन सबको धन्यवाद प्रदान किया। और साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा, अभी सार इशू को लेकर, सार मीन्स स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स, जो हाल ही में जो पार्लियामेंट का भीतर फिर इलेक्शन कमीशन का हुआ, हर एक पार्टियाँ जो इंडिया ग्रुप ने वहाँ मुलाकात करने के लिए मार्च किया, लेकिन हाल ही का सरकार ने जाने नहीं दिया, मना किया, पुलिस फोर्स लगाकर उन लोग को डिटेन किया गया। माननीय राहुल जी, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी लोग को और अन्य नेताओं को अरेस्टेड किया गया। तो ये वजह है कि जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रोल्स में जिस ढंग से गड़बड़ी किए गए उसको इंडिया गठबंधन ने पकड़े गए हैं। तो इसका चलते इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा, उन लोग जवाब दे ही नहीं है, जवाब दे नहीं पाया। उसका चलते उन लोग का बदले में फिर बीजेपी पार्टी जो सत्ता में है उन लोग ही इलेक्शन कमीशन का बदले में बात करते हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग का कहना है, देश भर का लोगों का कहना है, आम जनता का कहना है, ये डेमोक्रेसी का हित में नहीं है, ये डेमोक्रेसी को उल्लंघन करते हैं। जिस डेमोक्रेसी को फ्रीडम फाइटर्स ने या माननीय फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी, बहुत लोगों ने मिलकर, सभी नेता ने लड़ाई लड़ी, सभी जात के लोगों ने लड़ाई लड़ी, धर्मवाद छोड़कर, और ब्रिटिश को इस देश से उन्होंने यहाँ से जाने दिया। तो अभी संविधान को ख़त्म कर रहा है और जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहा है, उसका खिलाफ हम लोग ने आने वाला दिन 29 अगस्त को एक मीटिंग बुलाई है और रैली का तौर पर और मीटिंग भी होंगे। उसमें यही होगा, राजीव गांधी भवन का कंपाउंड पे बहुत बड़ा मीटिंग होगी, जो रैली जो डेमोक्रेसी को कुचल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलने का काम कर रहा है और इलेक्टोरल प्रोसेस को दबाने का गड़बड़ करने का इलेक्शन कमीशन जो कर रही है, उसका खिलाफ हम लोग एक बहुत मूवमेंट देश भर में चला रही है। तो 29 को मीटिंग होगा। उसका बाद फिर आने वाला 15 सितंबर से अक्टूबर 15 तक हम लोग देश भर में, पूरे अरुणाचल प्रदेश में, जिला में, गांव में हम लोग दूर जाएंगे और सिग्नेचर कैंपेन का रूप में हम लोग मुहिम चलाएंगे और उसको हम लोग कंप्लीट करने का बाद पूरे देश का मिलाकर 5 करोड़ से एबव जो सिग्नेचर हम लोग माननीय महामहिम राष्ट्रपति को हम लोग सौंपेंगे और इलेक्शन कमीशन को हम लोग सौंपेंगे। इसी सिलसिले में हम लोग ये प्रोग्राम हो रही है और आज का जो है ज्वाइनिंग प्रोग्राम का साथ साथ में ये बात आप सबको बता रहा हूँ। थैंक यू।